Hello everyone, welcome to Sunya IAS, and today finally we are starting with the prelims revision program, the Sunya Super 50 batch. Alright, so as we have planned, the first test is of environment, and we have promised you that we'll be telling you before every test that what to read and how to read, right? But before starting with this, I would like to share a few things with you that yes, we do acknowledge that the next 3 months are going to be very tough for you as well as for us working as a team to honestly make this program a success. I would request you guys that whatever enjoyments, whatever the fun part you were doing in your life, please put them on hold for the next 3 months if you really want to succeed in this year's prelims. Do not miss any of the test because this test series has been designed in such a way that even if you miss the single test, the entire program will be disrupted, right? And seriously, not as a motivation sake or something, but whatever I'm saying, I literally mean these words. The 2 or 3 things we actually require from your sides during this entire journey of 3 months are dedication, hard work, and commitment. Please sacrifice every other thing than this exam you are doing in your life, whether they are certain health issues, mental issues, emotional issues, psychological issues. Please put them aside and just imagine that this 3 years hard work can bring wonders in your life. We will be fully committed. I know that there might be some days during this journey of 3 months you might feel low, you don't want to attempt the exam, but we are here always to remember that if no one is there, we still here as a team for you guys. We are just one call away. You can call us, but one request, please be consistent, please be fully dedicated, and let's honestly, what we promised on the day one, honestly, let's make this prelims a cakewalk this year, right? And trust me, after you're done with this entire test series that is ending on 3rd of March, you will see a confidence in yourself. You will see that mental boost in yourself which you would not have ever experienced with respect to the prelims preparation. All right, so let's begin. If we talk about the first test, so we divided it into the 4 aspects. First was the basic of environment ecology. The second aspect which will be covered in this test is the terrestrial and aquatic ecosystems. Third, the theme of this test, which was forest conservation, followed by the mapping aspect, which was in this test Northeast India's biodiversity. All right. The majority of the students they have this doubt that whether we have to follow the Sunya as booklets which have been written as the sources. Yes, you can follow those notes as well, and if you want to buy those notes, you can subscribe to our prelims crash course. But in case if you want to refer some different source, so this video and I'll be just telling you that what has to be read from the particular source or the booklet whichever you are referring for the purpose of prelims. All right. So let's begin with every book that starts with environment, starts with the definition of environment, ecology, biomes, heckle, this and that. That is not at all required for the purpose of UPSC. So do not do that. Then in that chapter, you just need to do the difference which is there with respect to the species, population, community, ecosystem, biomes and biosphere. तो इन सब के बारे में 2-3 points please याद कर लीजिएगा, ठीक है? So that you are able to maintain that if a description comes that what is it and the examples of them. Then moving on to the ecosystem, just have a tabular format, what are natural and artificial, and maybe there has to be a division that what are natural terrestrial ecosystems and what are natural aquatic ecosystems, followed by what are artificial terrestrial ecosystem and artificial aquatic ecosystems. Then you have to do this concept of ecotone and effect, followed by this concept of ecological niche. इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, one is fundamental niche and other one is realized niche. तो इनके बारे में एक definition कर लीजिएगा. Whatever has to be done और जिसका भी आपको सिर्फ essence या concept जानना है, I am just telling you, तो इनके बारे में जो भी हमने ऊपर concept किया, आपको सिर्फ एक essence पता होना चाहिए. No need to cram the things or facts whatever are given. ठीक है, जिनमें कुछ पॉइंट्स करने हैं, फैक्ट्स करने, उनके बारे में आई बी टेलिंग यू साइमल्टेनियसली. देन हमें 2 प्रिंसिपल्स करने फॉर आवर पर्पस, दैट इज डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल एंड गॉस लॉ, फॉलोड बाय द बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस. जितनी भी 5 या 6 आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सब कर लीजिएगा एंड उनके एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा, वॉट एवर आर देयर इन एनसीईआरटी. उसके बाहर जाके कोई एग्जाम्पल रेफर मत करना, ठीक है? चलो, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज फ्लो ऑफ एनर्जी. उसमें आपके ये 3 कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स यू हैव टू बी डन इन डिटेल. फूड चेन, फूड वेब को जस्ट यू हैव टू लिंक दैट की फूड चेन में सबसे बॉटम पे कौन होगा एंड सबसे टॉप में कौन होगा, या फ्लो ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है जी. इकोलॉजिकल पिरामिड्स को थोड़ा डिटेल में करना है, विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑलराइट. देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में देयर हैज टू बी 2 टाइप्स यू हैव टू डू, गैसियस एंड सेडिमेंट्री. गैसियस में यू हैव टू डू अ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर एंड ऑक्सीजन साइकिल. सेडिमेंट्री में सल्फर एंड फॉस्फोरस, दैट वुड डू फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी. जस्ट पता होना चाहिए इनका आउटपुट क्या निकलता है एंड हाउ दे आर डन, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज.
देन यू हैव टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन फॉलोड बाय दिस नॉर्बर्ट वीनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट का सेंस पता होना चाहिए, उसमें दो स्पेसिफिक टर्म्स निकलेंगे, वन इज होम्योस्टेसिस एंड अदर इज द फीडबैक सिस्टम। इनके बारे में यू हैव टू डू अ बिट ऑफ डिटेल, ज़्यादा डिटेल में नहीं पर ज़्यादा स्पेसिफिकली इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। फॉलोड बाय अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था ये इकोसिस्टम सर्विसेज, तो 5 तरह की होती हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल। इनके बारे में एक एक लाइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट आर दीज, एंड फाइनली व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज सर्विसेज। ठीक है, तो एग्जांपल्स दो दो तीन तीन सबकी करके रखना एंड ओनली डू द क्लीशे एग्जांपल्स। यूपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा, क्लीशे एग्जांपल से कंफ्यूज करेगा। देन देर इज दिस कॉन्सेप्ट इन न्यूज़, मॉनिटरी वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज की, कितना मॉनिटरी टर्म्स में हम उनको आंक सकते हैं, तो उसके बारे में देयर वाज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट गिवन बाय एन इंडियन नेम्ड एज डॉक्टर पवन सुखदेव, उसको टीप बोलते हैं, तो टीप का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इकोसिस्टम अकाउंटिंग, इकोसिस्टम अकाउंटिंग में यू हैव टू डू दिस नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। देन देर इज दिस इनिशिएटिव फॉर इकोसिस्टम अकाउंटिंग दैट इज एनकेव्स बाय यूनेप, इस इनिशिएटिव को देख लीजिएगा। एंड देन देर आर, इसको डिटेल में देखना, 2 या 3 पॉइंट हैं इसके, अच्छे से देख लेना कायदे से, व्हाट इज द मेथड एंड ऑल दैट थिंग्स। देन देर आर इनिशिएटिव्स फॉर इकोसिस्टम अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू यूएन, मॉस्पी, वर्ल्ड बैंक एंड IUCN। इनको डिटेल में नहीं करना, इनके सिर्फ नेम्स एसोसिएट कर लेना, ठीक है जी, कि यूएन का कौन सा है, मॉस्पी का कौन सा है, वर्ल्ड बैंक का कौन सा है, IUCN का क्या है। देन देर आर 2 रिलेटेड टर्म्स, दिखने में थोड़ी सेम लगती हैं, दैट इज ग्रीन एनवायरमेंट प्रोडक्ट एंड ग्रीन GDP। तो इन दोनों में लेकिन डिफरेंस क्या है, वो एक क्लियर मार्क, एक लाइन का डिफरेंस है, वो याद कर लेना, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी। देन देयर हैज टू बी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो उसमें देख लेना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर फ्लो, एंड उसमें यू हैव टू सी द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डीकम्पोजर्स। हर एक की जो भी NCERT में एग्जाम्पल दिए 3-3, 4-4, वो क्लीशे एग्जाम्पल्स प्लीज रट लेना। देन फूड चेन में देर इज दिस ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस, दोनों करनी है। देन इफ यू टॉक अबाउट द फूड चेन में देर इज दिस टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक में स्पेसिफिकली फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड बिग फिश, दिस इज हाउ द चेन गोज। एंड इस चेन में हर एक का एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है, दैट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हैं, इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा और इनको अरेंज भी कर लीजिएगा, लिंक दिस टॉपिक विद बायोमास, ठीक है, बायोमास वाले पिरामिड से इनको एसोसिएट कर लीजिएगा। Then with respect to the aquatic organisms, do these what are newstons, planktons, periphytons, nectons and benthos. UPSC has a habit now since past 2 or 3 years asking about such questions कि कौन सा इसमें फॉल करेगा। Then do the concept of food web. पिरामिड्स में स्पेसिफिकली करें तो चार्ल्स एल्टन का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने डिवाइड किया पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी, तीनों करने हैं, ठीक है। Associated with this pyramids का concept there is this law called as Lindman's law, 10% law, ठीक है, वो देख लीजिएगा what is that, and followed by a clear demarcation between what are the pyramids which will fall under the upright pyramids and what are the inverted pyramids। दोनों की क्लासिफिकेशन देख लीजिए कौन सा किस में जाएगा, nothing else is required। चलो, देन देर आर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन, बायो कॉन्सेंट्रेशन एंड मैग्निफिकेशन। इन जब कॉन्सेप्ट्स को करोगे तो इनसे एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट POP का निकलता है, थोड़ा सा POP के बारे में देख लेना, एंड फॉलोड बाय द कन्वेंशंस विच आर एसोसिएटेड विद POPs, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी डजन, तो ये तीनों चीज़ें एक बार देख लेना इनके साथ ही। देन मूविंग ऑन टू इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, उसमें ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में स्पेशली वाटर फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स, एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट पे खास थोड़ा यू हैव टू पे अटेंशन ऑन, ठीक है जी। एंड इसमें देख लेना वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर व्हाट इज द मैकेनिज्म जिससे वो चीज़ें अंदर इनहेल करते हैं, कैसे वो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं इनमें, ठीक है। सो व्हाट इज द एंटायर प्रोसीजर, ये चीज़ प्लीज देख लीजिएगा स्पेशली फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। देन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इसमें यू हैव टू डू प्राइमरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी, दोनों की मेजरमेंट्स करनी है। इन दिस मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फॉलोड बाय सेकेंडरी में भी देयर इज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो इन चारों को देख लीजिएगा। देन वी हैव टू डू अ डिफरेंस बिटवीन और कंपैरिजन बिटवीन द प्रोडक्टिविटी की लोअर लैटिट्यूड के ऊपर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में ज़्यादा होगी या हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादा होगी, लोअर ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा होगी या हायर ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा होगी, देन कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होगी या ओशंस में ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय, अच्छा ये 3 इकोसिस्टम्स हैं, हाईली प्रोडक्टिव, मीडियम प्रोडक्टिव एंड लोअर प्रोडक्टिव, इन सबका एक क्लासिफिकेशन होता है एंड हर एक की 4 to 5 एग्जाम्पल्स आपने करनी है, ठीक है। नाम तो आपको क्लियर है, हाईली प्रोडक्टिव, मीडियम प्रोडक्टिव, लोअर प्रोडक्टिव, इनकी एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हर एक की 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। देन यू हैव टू डू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें 2 तरह का होता है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों करने हैं। देन देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड एज क्लेमेंट, तो उसने स्टेजेस ऑफ सक्सेशन दिए जैसे न्यूडेशन, माइग्रेशन, देन इनोवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो 5-6 हैं, उनको कर लीजिएगा, व्हाट हैपेंस इन ईच एंड एवरी स्टेज एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज, वो भी कर लीजिएगा। देन फॉरेस्ट वर द थीम, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखना कि व्हाट आर न्यूमैटोफोर्स, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विविपैरिटी, कैसे वो के सीड्स जर्मिनेट करते हैं, कैसे उनकी रूट्स जो होती हैं दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दे आर कॉल्ड एज द ब्रीदिंग रूट्स, है ना, हाउ दे आर एबल टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन द सलाइन एनवायरनमेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें फिजिकल एट्रीब्यूट्स में देख लेना। फॉलोड बाय जोग्राफिकल एक्सटेंट की कौन कौन सी कोस्ट लाइन स्टेट्स पे मिलती हैं, कहाँ पे इनकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
देन सिमिलर थिंग्स यू हैव टू फॉलो विद रिस्पेक्ट टू द कोरल्स एज वेल. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना दोनों का, ठीक है. फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, दैट इज इट फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी. देन विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस, एक रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डिफरेंस कर लेना. कहाँ से करना है? एनसीईआरटी में. वॉट एवर द क्लीशे 4-5 एग्जाम्पल्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम इन द एनसीईआरटीज, सिर्फ वो 4-4, 5-5 क्लीशे एग्जाम्पल्स इनकी रट लेना. देन सिमिलर थीम हैज टू बी फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. फिर आप करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेड जोन्स, सीवीड्स एंड मियावाकी टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन ऑफ 2022. ये भी एक बार फिर से देख लीजिएगा. सीवीड्स का ना यार एक्सटेंट भी देखना, ठीक है. और कंट्री वाइज एक्सटेंट भी देखना, कौन सी कंट्री है जो भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया का क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ पे हम ये इनका जोन लेके आ रहे हैं, दिस एंड दैट, ठीक है जी. देन कम्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन जोन. इन दिस यू हैव टू कवर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927, इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005, कैम्पैक्ट ऑफ 2016. कैम्पैक्ट में 2 चीज़ें स्पेसिफिकली फोकस करनी है. एक तो वो तो करना ही है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों लेके आए थे, कितने % एलोकेट करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा, दिस एंड दैट यू हैव टू सी. बट इन दिस डू 2 स्पेसिफिक थिंग्स विच यू हैव टू सी. वन इज द ग्रीन क्रेडिट स्कीम, देखना है क्या है, एंड अदर इज द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है जी. ये दोनों चीज़ें देखनी है. देन देर इज दिस चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन. फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट किस चीज़ में क्लासीफाई होंगे, उसके लिए इंडिया अडॉप्टेड दिस चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन. सो इसमें 14 या 15 तरीके से फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया हुआ है. तो उन 14 या 15 एस्पेक्ट्स का मेक अ टेबुलर फॉर्मेट, और सबके वो कर लीजिएगा कहाँ पे रेनफॉल क्या रहती है, कैसा वहाँ पे क्रॉप्स दिस ट्रीज कैसे होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स एक बार ये चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन जरूर रट लेना यार अच्छे से, ठीक है. देन 2021 में देयर वाज दिस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. जितना पीआईबी की न्यूज़ में डेटा दिया है ना, उससे एक लाइन ज़्यादा ना कम, ओनली दिस यू हैव टू रेफर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इन जैसे एक्ट्स में, ये 4 एक्ट हैं, तो वॉट यू नीड टू डू इज, आई कैन टेल यू राइट नाउ हियर कि वॉट हैज़ टू बी डन, बट आई वुड से दैट कि इनमें क्या करो, फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच. डू रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उनमें से डू ट्राई टू फिगर इट आउट कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में इफ यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन तो उसने कौन कौन सी डायमेंशंस एक्सप्लोर करी हैं, ठीक है. एंड देन मूव ऑन टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज पीआरएस लेजिस्लेटिव एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट दैट. आई विल गिव यू ब्यूटीफुल एग्जांपल. लेट्स से दैट देयर इज दिस मेंस का टॉपिक कॉल्ड एज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ठीक है, जो आपको लिखा हुआ है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, यू जस्ट इमीडिएटली, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर होगा, सो देयर आर 17 एक्ट्स अराउंड, ठीक है, 16-17 एक्ट्स हैं. तो क्या हम सब प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए? नो, द आंसर इज नो. व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में यूपीएससी ने आज तक क्या पूछा. इट हैज ओनली आस्क्ड गवर्नमेंट of India Act 1935. All right. So we'll move one notch below that and we'll also cover for our safe side, that is Government of India Act 1919. ठीक है. So similar approach has to be followed by you with respect to these acts also. इनके previous year पढ़ो. The reason I'm saying you, I can tell you right now, but I will not be telling. The reason is that ये acts आगे वाले 6 के 6 टेस्ट में भी आएंगे. And 6 के 6 टेस्ट ही नहीं, all the other subjects have such acts. तो acts के बारे में क्या सेंस पता होना चाहिए कि what are the aspects which UPSC can explore, और आप वही करोगे PRS legislative से. Clear? चलो. Then there were these various schemes, initiatives and organizations. इसमें we have to do Nagar Wan Yojana, National Forest and Ecosystem Development Board, then Working Golden Code. जैसे यूपीएससी nowadays has this habit of asking out of the box questions, like there was this question with respect to arbitrary foundation, है ना. तो ये वर्किंग गोल्डन कोड becomes important. इसको एक बार प्लीज देख लेना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है. यू मस्ट नॉट हैव read it in normal sources. उसको पढ़ लेना. Then comes Green India Mission, followed by Forest Principles, Global Forest Goals, UN Forest Instruments. Then this organization called as TRIFED. Then Aichi targets. Then you have to do red plus, and similarly there is another forest plus. तो इनमें डिफरेंस देख लेना. इनमें करना क्या है, फॉरेस्ट प्लस जैसा जस्ट हैव अ लुक कि यार ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया या नहीं दिया. अगर किसी एनजीओ ने दिया, डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नेम, बिकॉज यूपीएससी एनजीओ के नाम से में कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है. कंफ्यूज करेगा वो दिया एनजीओ ने होगा, बोलेगा यूएन ने दिया है. तो जस्ट हैव अ क्लियर डिमार्केशन कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया या एनजीओ ने दिया. एनजीओ ने दिया, जस्ट राइट एनजीओ. अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया तो वहाँ पे नाम लिख लो, ठीक है. दिस हैज टू बी डन. Then do a difference between social forestry and joint forest management. Then this another concept of social cost of carbon, and this has been a previous question as well. And then there is tree outside forest in India initiative. इस initiative को देख लीजिएगा, ठीक है. Followed by this conceptual part, what is forest degradation versus what is deforestation, and what is the difference between afforestation. All right. ये भी साथ में देख लीजिएगा. देन व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, फिर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है, देन व्हाट इज दिस लैंड डिजर्टिफिकेशन, एंड फॉलोड बाय दिस इनिशिएटिव एट रियो 1992, दैट इज यूएनसीसीडी. इसमें देख लेना व्हाट इज इट लीगली बाइंडिंग और नॉट, क्या इसके अंडर टारगेट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या टारगेट्स हैं, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं. देन यूएन व्हाट इट डज इज बिफोर एनी डिकेड स्टार्ट्स, उसके पहले वो एक पर्टिकुलर डिकेड को एलोकेट कर देता है, ठीक है. तो 2011 और 2020 तक उसने इस डिकेड को किस में एलोकेट किया था. देन 2021 से लेकर 2030 तक इसने डिकेड को किसको एलोकेट किया था. ये चीज़ें का चार्ट बना लेना, ठीक है. देन रिसेंटली दिस COP14 ऑफ यूएनसीसीडी वाज हेल्ड, तो उसके इनिशिएटिव्स देख लेना कहाँ से देखने हैं, जितने पीआईबी में लिखे हैं सिर्फ उतने, ठीक है. व्हाट वर द मेजर आउटकमिंग्स ऑफ दैट इवेंट, सब जस्ट पीआईबी रेफर करना, नथिंग एल्स.
देन लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव्स, देयर वर 3 इन न्यूज़ बेसिकली। 2020 देख लीजिएगा, AFR 100 देख लीजिएगा एंड बॉन्ड चैलेंज देख लीजिएगा, कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड करना है इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव, वो एक चार्ट बना के एक क्लियर डिफरेंस मेंटेन कर लेना, वही कैन बी एलिमिनेशन पॉइंट इन यूपीएससी। देन देर आर सर्टन एटलसेस, जैसे वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, ये मैंने इसलिए दिए बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट। जैसे दिस एटलस इज मेंटेन्ड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे सबका एक दो पॉइंट सब एटलसेस के क्या वो करती हैं, किसका डेटा हमें देती हैं, कौन उसको बनाता है, ये चीज़ मेंटेन करके रख लेना बस। देन फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन इज इनिशिएटिव बाय NAB एंड IUCN, दिस हैज टू बी डन बाय यू। चलो मूविंग ऑन टू द मैपिंग एस्पेक्ट। मैपिंग एस्पेक्ट में आई विल गिव यू ब्यूटीफुल एग्जांपल कि जब भी हम एनवायरनमेंट में मैपिंग एस्पेक्ट कर रहे हैं, सो विल बी फॉलोइंग दिस अप्रोच की विल बी फॉलोइंग द बायोस्फीयर रिजर्व अप्रोच। उसमें कैसे करेंगे, आई हैव गिवन यू और पेस्टेड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो सबसे पहले तो जैसे उसने ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क में पूछ लिया तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, सो बायोस्फीयर रिजर्व का पूछ सकता है कौन कौन सी स्टेट्स में है, क्लियर। तो उसमें इट इज इन 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो ये कर लेना है। देन पर्टिकुलरली स्टेट्स में मेक अ टेबल एंड उसको डिवाइड कर लो कि इस स्टेट में कौन सी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आ रहा है। जैसे कर्नाटका में अंडर दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वी हैव राजीव गांधी और नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क। केरला में वी हैव वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निलंबूर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दैट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। देन इट वाज मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तलाईमलाई एंड सिरुवेरी। अगर उसमें ना किसी को इतना पता होता ना कि साइलेंट वैली लाइज इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एंड दैट इज इन द स्टेट ऑफ केरला, तो उससे आंसर ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। देन हर एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक ना एक फैक्चुअल पॉइंट होता है, जैसे इसमें रंगास्वामी टेम्पल एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज अ जंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो हर एक बायोस्फीयर रिजर्व का एक ऐसा एक यूनिक पॉइंट होता है, एक या दो, तो उनको नोट प्लीज करके रख लीजिएगा। देन स्पीशीज, व्हाट आर द एंडेमिक स्पीशीज, जैसे नीलगिरी ताहर, लाइन टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट, नीलगिरी लीफ मंकी, मालाबार जायंट स्क्विरल, और साइमल्टेनियसली इनका एक IUCN स्टेटस कर लेना, बस दैट इज इट, ठीक है। देन अदर्स ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रे लंगूर, IUCN स्टेटस। देन ट्राइब्स कौन कौन सी यहाँ पे होती हैं, लैंग्वेज कौन सी बोलती हैं, डेटा टोडाज, इरूला, कुरुम्बा। जैसे इरूला वॉज इन यूज बिकॉज देयर वाज दिस फ्लावर फाउंड इन नीलगिरी दैट इज नीला गुरिंजी दैट वंस ब्लूम्ड इन 12 years, so that's why इरूला ट्राइब बिकम इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली एक्स्ट्रा एफर्ट मत करिएगा बिकॉज दैट विल टेक योर टाइम। विल बी डिस्कसिंग दीज करंट फेयर न्यूज़ इन द क्लास एज वेल, तो मैं डिस्कशन में आपको दूंगा ही। बट अगर कहीं मन से आ रहा है कि यार दिस आई हैव रेड इन द करंट फेयर्स एंड आई एम एबल टू राइट इट डे, तो वो चीज़ें लिख लेना, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स विच विद रिस्पेक्ट टू एवरी बायोस्फीयर रिजर्व विच यू हैव टू फॉलो, कि कोई वहाँ से लेक तो नहीं निकल रहा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज दिस नॉर्थ में सबसे ऊपर व्हाट इज द नेम, that lake called as Chandratal, which is a source of Chenab, so that also lies in the biosphere reserve, है ना। तो ऐसा कोई लेक तो नहीं है, मेजर रिवर्स तो नहीं है जो जहाँ से निकल रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व विच यू हैव टू डू विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट, तो उसमें से 2 रिवर्स ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, दिहांग एंड दिबांग, सो डू रिमेंबर। फिर कोई वेटलैंड तो नहीं है, अगर कोई वेटलैंड है वेदर दैट इज अ रामसर साइट, जैसे असम में देयर इज दीपोर बील, तो दीपोर बील इज अ वेटलैंड, तो दीपोर बील इज अ रामसर साइट एज वेल। जैसे त्रिपुरा में देयर इज रुद्र सागर लेक, है ना। तो ऐसी एस्पेक्ट्स प्लीज डू एक्सप्लोर विद रिस्पेक्ट टू द मैपिंग एस्पेक्ट। अभी अगर बात करें 5 बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द एस्पेक्ट ऑफ this paper you have to cover, they are Kanchenjunga, Nokrik, Dihang Dibang, Dibru-Saikhowa and Manas. Kanchenjunga and Nokrik are in map, so there is this website of Indian government called as Indian Culture, ऐसे करके इंडिया कल्चर करके है, so do type Kanchenjunga and Indian Culture, तो आपको डेटा आ जाएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट हैज डिमार्केटेड अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन यूनेस्को, कि यूनेस्को ने क्या डेटा दिया है, हमने खुद से क्या डेटा ऐड किया है, ठीक है। तो वो दोनों टैब्स कर लीजिएगा। विद रिस्पेक्ट टू दिहांग दिबांग, दिब्रू-साइखोवा, ये सेम पैटर्न फॉलो करना है फ्रॉम विच एवर स्टैटिक सोर्स यू आर डूइंग, ठीक है। प्लस ये चीज़ कवर करके इनको टाइप दिहांग दिबांग ऑन गूगल प्लस PIB, तो जो भी 1-2 न्यूज़ करंट में मिलेंगी पिछले 1 साल से, उनका डेटा ऐड कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट टेस्ट एंड वी आर डन विद इट आई गेस। सो यस, तो अभी सी यू गाइज इन द फर्स्ट टेस्ट, प्लीज़ वर्क हार्ड वेरी एफिशिएंटली। प्रोग्राम इज स्टार्टिंग ऑन 12th, बट आई वुड से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो itself. Please put all your engagements on hold for at least next 3 months. Let's work hard very dedicatedly in a very committed way. We are always there for you. We are always one call away. There must be times you feel demotivated, test attempt करने का मन नहीं करेगा. Just have a talk with us. We'll sort all the issues, but we'll not skip any single test, and let's make it a promise with each other. ठीक है जी. So I'll be waiting for you in the first discussion. All the very best to you guys. Work hard in a very dedicated manner. ठीक है. See you guys. Thank you.